Students, today we are going to understand the concept in chapter atoms and nuclei, and I have taken this part from new NCERT page number 300 where you will find energy levels. Okay, so before we come to that, let's go to Bohr's postulates. Okay, what Bohr says that first postulate is or principle you can say. पहला क्या है कि see if any in any atom, okay, if electron is orbiting around the nucleus in any stable orbit, then it can do so without any radiation of energy. Okay, so without radiating any energy, an electron can revolve around the nucleus. Okay, that is one, without radiating any energy. Second is there has to be angular momentum which should be n times h upon 2 pi. ठीक है, in such orbit the angular momentum would be n integer times h upon 2 pi. इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ठीक है, which is close to n into h upon 2 pi. Third, what is the third principle is? Third says that if from a higher energy state electron moves to a some lower energy state, then there would be emission of photon, and that emission of photon h nu, the energy for that photon would be what? E initial minus E final. Okay, initially from higher energy and then it goes to a lower energy, then there would be a emission. So this part is important actually, and using all these three principle we are going to understand energy levels. Okay, let's say for hydrogen atom, by the way, the total energy is minus 13.6 z square upon n square. Okay, so from that for hydrogen atom z is equal to 1, and if you will keep putting values of n, okay, so total energy, this is on, let's say, y axis, this is giving you total energy, and this value comes out to be in electron volt. Okay, so total energy जो ground state में है, I will tell you a lot of facts in this video, so do remember that and try to use it while doing questions. Okay, so ground state में energy जो होगी, total energy, कौन सी energy? Total energy, it would be minimum, right? क्यों? Because negative sign है, right? Absolute value आप लोगे तो maximum आएगा 13.6, but you don't have to consider absolute value, minus sign के साथ we will read it. तो minus 13.6 that means lowest energy कहाँ पे पाई जाएगी? Ground state में n equal to 1 में. Okay, tell me one thing, अगर हमें ground state से electron, okay, why the negative sign? ये question पूछा जाता है, why the negative sign? ऑप्शन में assertion रीजन में पूछा जा सकता है minus, why the negative sign? Because electron is bound to the nucleus. Whenever we say nucleus, either you can say nucleus or you can say proton. Okay, so when electron is bound to the proton, bound to the nucleus, that is why this energy is there, negative sign is there. So होगा क्या? Bound है proton से. Now what you want? Electron को आयोनाइज कर देना है, न्यूक्लियस से फ्री कर देना है, अनबाउंड कर देना है. कहाँ पे? n इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेट में. तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? माइनस 13.6 है, अगर इसको प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप दे दो, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट. ओके, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप दे दो तो कहाँ चला जाएगा? अनबाउंड हो जाएगा, या फिर आयोनाइज्ड एटम बोलते हैं इसको, अनबाउंड एटम या आयोनाइज्ड एटम, और n इक्वल टू इन्फिनिटी. तब टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो, एकदम से स्टेबल, फ्री. काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सब जीरो हो जाएगा. यहाँ पे एक फैक्ट और जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज, या फिर उल्टा कर लेते हैं, आई शुड हैव केप्ट द डस्टर. जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? डबल ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक, दैट इज, ये आपको जब क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा. सी आई विल डू वन क्वेश्चन जो प्रीवियस PYQ का है, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. आप बताओ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वेदर यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन और नॉट. ठीक है, ओके, चलते हैं यहाँ पे. n इक्वल टू 1 से अगर 2 पे जाना होगा,
ठीक है, n इक्वल टू 1 से 2 पे जाना हुआ, तो आप एनर्जी दोगे या इमिट होगा? अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। आपको एनर्जी देना पड़ेगा, राइट? ग्राउंड तो स्टेबल स्टेट है ना, रिलेटिवली स्टेबल देन n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एनर्जी कम है और एनर्जी कहाँ जाना है? हायर एनर्जी पे जाना है। सी -3.4 मैग्नीट्यूड कम है, एब्सोल्यूट वैल्यू कम है, बट नेगेटिव के साथ ये वैल्यू ज्यादा है, इट इज लार्जर देन -13.6, ओके। तो आपको n इक्वल टू 1 से 2 में जाने के लिए यू नीड एनर्जी, यू नीड टू गिव एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए यू हैव टू गिव द एनर्जी, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख रहे होगे यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5, जैसे जैसे आप जा रहे हो ऊपर हायर स्टेट्स में, द एनर्जी गैप इज रिड्यूसिंग, ठीक है, दे कीप ऑन रिड्यूसिंग, ओके। अगर आप बता दो विच प्रिंसिपल गोल्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, आप रिलेट करो, क्या था फर्स्ट पॉस्टुलेट? फिर से मैं रिवाइज कराता हूं। अगर, सॉरी नॉट फर्स्ट पॉस्टुलेट, थर्ड में क्या था कि अगर किसी हायर एनर्जी लेवल पे है कोई इलेक्ट्रॉन और उसको लोअर एनर्जी पे आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी गिव अप करना पड़ेगा, एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। लेट्स से आई एम एट थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड से मुझे 1 पे जाना है, या थर्ड से लेट्स से 2 पे, पास सबसे नजदीक क्या है? 2 पे, तो थर्ड की एनर्जी ज्यादा है, -1.51, 2 की -3.4, माइनस साइन के साथ रीड करेंगे, आई रिपीट माइनस साइन के साथ रीड करेंगे, ठीक है। सो 3 से 2 पे जाओगे आप, तो एनर्जी गिव अप करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली या तो 3 से 2 जाओ और फिर 2 से 1 आओ, या 3 से 1 सीधा सीधा आ जाओ, ठीक है। तो आपको दोनों केसेस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन इमिट करना पड़ेगा। 3 से 2 जाओगे तो hν की वैल्यू बराबर करके क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज द थर्ड पॉस्टुलेट, थर्ड यूज करोगे। 3 से 2 जा रहे हो ना, इनिशियली E3 है, फाइनल E2 है, बराबर hν इक्वल टू hν, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 2 से 1 जाओगे तो hν क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। 3 से सीधा 1 आ रहे हो तो hν लेट्स से 1 2 3 ये 2 to 1 करो, 3 to 2 करो, ये 3 to 1 सीधा करोगे तो E3 माइनस E1, ठीक, इनिशियल माइनस फाइनल। आपको समझ में आ रहा है ये ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। A lot of facts I have told you, वो याद रखना है, you have to keep that in mind while doing the questions। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। The diagram shows the energy levels। आपको एक डायग्राम दिया है, एग्जाम में ऑप्शन है ABCD, energy level for an electron in a certain atom, you don't know that hydrogen, helium or what it is, so Z कोई होगा, वो constant होगा, it will have some number, okay। Which transition, okay, diagram shows the energy levels for an electron in a certain atom, which transition, ये transitions दिखाए गए हैं arrow से, shown represents the emission of a photon with the most energy। चलो इस क्वेश्चन को एक बार गलत करते हैं, ठीक है। Which transition shown represents the emission of a photon with the most energy? सबसे ज्यादा एनर्जी इमिशन किस में होगा? Tell me one thing, आप 1 से 2 का जो बैंडविड्थ होता है ज्यादा होता है रिलेटिव टू 2 to 3, और 2 to 3 ज्यादा होता है रिलेटिव टू 3 to 4। आपको ये दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से बनाया है, ठीक है। नाउ सबसे ज्यादा बैंड एनर्जी गैप आपको कहाँ से दिख रहा है? 1 से 3 मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करके whatever I have taught you, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगा के, Z इज ए कांस्टेंट, राइट, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इसको कोई K मान लेना, कुछ भी मान लेना, फिर आपको क्या करना है 1/1 स्क्वायर, सी E कहाँ से देख रहे हैं 1 to 3, 1 to 3 जा रहे हो तो -K मान रहा हूँ, किसको? -3.6 इंटू जेड स्क्वायर, बिकॉज सर्टेन एटम, यू डोंट नो दैट एटम, राइट। तो 1/1 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर, इसको कर लेना, ये करीब -0.88 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है बाय द वे। हाँ, मेरे हिसाब से अगर ब्लाइंडली इस क्वेश्चन को गलत करना हो, ऐसे लगाना हो कि नहीं अरे सबसे ज्यादा एनर्जी बस इट वुड बी फ्रॉम 1 to 3, फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा के विल बी डन, OMR शीट इज फिल्ड, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। होगा क्या, 1 to 3 इज इनकरेक्ट,
बिकॉज क्वेश्चन आपको एकदम से डिलीजेंटली पढ़ना होगा, माइंडफुल होके पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। इमिशन की बात हो रही है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 1 से 2 में जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मीन्स एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। 1 से 3, 1 की एनर्जी कम है, 3 की एनर्जी ज्यादा होती है, डिफरेंस आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, बट इसमें देना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इमिशन की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपको ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन जो है, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा आपको, ठीक है। देखो ये अब सारे इमिशन है तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। 4 to 3 आपको दिख रहा है एनर्जी गैप बहुत कम है, और कौन सा है 2 to 1, 4 to 2 का एक है, राइट। 4 to 2 को आप कंपेयर नहीं कर सकते, अगर 3 to 2 होता तो आप सीधा सीधा कंपेयर कर देते कि 3 to 2 का गैप कम होता है 2 to 1 के कंपैरिजन में यहाँ के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, एज यू गो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हो, देन ये गैप कम होता जाता है। बट 4 to 2 और 2 to 1, सी आई विद एक्सपीरियंस यू विल नो कि 2 to 1 इज योर आंसर, सबसे ज्यादा यही होगा। बट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, वो माइनस के रहने दो यहाँ पे, इनिशियल कितना हो जाएगा 4 पे ना, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस आएगा, क्यों, प्लस में एनर्जी रिलीज हो रही है ना यहाँ पे, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/16 माइनस 1/8, जो भी करोगे आई बिलीव इट वुड बी लेसर देन जब 1 to 2 करोगे, तो ये माइनस के 1/4 माइनस 1, ये आ जाएगा 0.75 के बाय द वे इज दिस कांस्टेंट आई एम कॉलिंग इट, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा 0.2 समथिंग लाइक दैट। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, सी वाला, ओके। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन, okay. So thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel and share the video, and let me know if you like the video. Thank you.